میں نے کہا تھا مجھے پاکیزہ لڑکی چاہیے، میں تمہیں ابھی طلاق دے دوں گا۔ میں نے غصے سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو کہا جس سے میں نے محبت کی شادی کی تھی، پر رات ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پاکیزہ نہیں، اور میرے قدموں میں گر گئی۔ بولی میں بے قصور ہوں، میں پاکیزہ ہوں، میرے ساتھ تو ظلم ہوا ہے، اور ظلم کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا ہی اپنا ہے۔ اس سنتے ہی میں نے اسے زوردار تھپڑ مارا اور بولا اگر میرے کسی اپنے کا نام بھی لیا تو جان دے لوں گا، اور اسے طلاق دے دی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی میں نے اپنا انصاف اللہ پہ چھوڑا، اب میرے گناہ گار کا عبرتناک انجام دیکھ تم جان جاؤ گے کہ کون مجرم ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، پر 2 دن بعد ہی قیامت ٹوٹ پڑی جب تم سے جھوٹ میں نہیں بلکہ کوئی اور بول رہا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ تم خوش رہو۔ اپنی بیوی کی بات سن کے جیسے میری غیرت جاگ گئی، میں نے اٹھ کے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا اور صاف کہہ دیا کہ مجھے تمہاری جیسی بد کردار لڑکی کے ساتھ نہیں رہنا، تم میرے گھر سے نکل جاؤ اور اپنی ماں کے گھر ہی جاؤ جہاں ہر روز نہ جانے کس یار سے ملنے جاتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میرے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور کہہ دیا کہ جلد ہی تمہیں طلاق کے کاغذات بھی مل جائیں گے۔ اس کے جانے کے بعد بھی گھر والے مجھے سمجھانے لگے کہ اس جیسی لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد نہ کرو جو صرف مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس وقت میں کمرے میں چلا گیا، لیکن میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا، اور اگلے دن میں نے گھر میں سب سے کہا کہ میں نے اپنی معصوم بیوی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس لیے میں اس کو لینے جا رہا ہوں۔ لیکن گھر والوں نے بہانے سے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کوئی 2 گھنٹے سمجھانے کے بعد کہہ دیا کہ جاؤ جا کے لے آؤ، لیکن اگر ہم ٹھیک ہوئے تو بعد میں پچھتانا مت۔ میرے ذہن میں بہت سے خیالات آ رہے تھے۔ جیسے ہی میں اپنی بیوی کی ماں کے گھر داخل ہوا تو خالی گھر دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میرے گھر والے ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ میرا نام سائم ہے، میرا تعلق سیالکوٹ شہر سے ہے جہاں میں اپنے بھابھی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس وقت میں 12 سال کا تھا جب اماں ابا کا انتقال ہوا۔ تب بھائی کی شادی کو چند مہینے ہی گزرے تھے اور اماں ابا گاؤں سے آتے ہوئے ایک حادثے میں چل بسے۔ بس تب سے ہی میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے اپنے بچوں کی طرح ہی پالا تھا۔ ہمارے گھر میں ہر آسائش موجود تھی۔ بھائی نے میری پرورش کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اچھی تعلیم بھی دلائی، اور جب میں کالج کی تعلیم مکمل ہو گئی تو میں نے بھی نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ بھائی اور بھابھی کو میرا جاب کرنا بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ ان کو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ شاید وہ میری ضروریات پوری نہیں کر پا رہے، اس لیے میں اپنے لیے خود کمانا چاہتا تھا، لیکن آخر کار ان کو میری ضد کے آگے ہار ماننا ہی پڑی۔ بھابھی نے بھائی کو منانے میں میری بہت مدد کی، اس لیے تو وہ میری سب سے اچھی دوست تھیں۔ بھابھی نے اماں ابا کے گزر جانے کے بعد مجھے ماں بن کے ہی پالا تھا، اور جو بھی ہمیں دیکھتا وہ ہماری تعریف ضرور کرتا۔ مجھے نوکری کی اجازت مل گئی تو میری ایک روٹین بن گئی۔ میری زندگی میں سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ تب میری ملاقات ثانیہ سے ہوئی۔ وہ یونیورسٹی میں میرے ساتھ ہی پڑھتی تھی اور ہم دونوں کی بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت وقت گزارنے لگے، مگر جب ہماری یونیورسٹی ختم ہوئی ہمارا ملنا جلنا کچھ کم ہو گیا، کیونکہ مجھے بزنس کے لیے تجربہ چاہیے تھا۔ اس لیے میں نے بھائی بھابھی سے ضد کی اور ملک سے باہر چلا گیا، جبکہ ثانیہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی اور اس کی اپنی 2 بہنیں تھیں جن کے مستقبل کے لیے وہ بھی دن رات محنت کرنے لگی۔ وہ خود بڑی تھی اور اس کی دونوں بہنیں چھوٹی، اس لیے گھر کی ساری ذمہ داری اس اکیلی کے کندھوں پہ تھی۔ اس کے ابا کا انتقال ایک حادثے میں ہو گیا تھا، تب سے ہی وہ اپنے گھر والوں کا واحد سہارا تھی۔ میں نے اس جیسی مضبوط حوصلے کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اس لیے مجھے اس کی ہمت اور اس کی زندگی میں کچھ کرنے کی لگن دیکھ کے اس سے محبت ہوئی تھی، اور میں تہیہ کر چکا تھا کہ میں ثانیہ کی زندگی کے ہر موڑ پہ مدد کروں گا اور جلد ہی اسے اپنی زندگی میں شامل کر لوں گا۔ مگر اس سے پہلے مجھے خود بھی ایک کامیاب بزنس کرنا تھا، اس لیے تو میں کینیڈا چلا گیا۔ لیکن جانے سے پہلے ثانیہ سے ایک وعدہ کر کے گیا کہ وہ میرا انتظار کرے گی۔ دن ایک دوسرے کے پیچھے بھاگنے لگے۔ میری صبح یونیورسٹی کے بزنس کورسز، دوپہر میں پارٹ ٹائم جاب، اور شام کو اپنے خوابوں کے نقشے بنانے میں گزر جاتی۔ زندگی تیز تھی، مگر اس تیزی میں بھی ہر رات ایک لمحہ ایسا آتا جب میرا دل پاکستان کے ایک چھوٹے سے محلے کی طرف کھنچ جاتا، جہاں ثانیہ اپنی بہنوں کے ساتھ ہنستے بستے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال رہی تھی۔ ہم دونوں نے وعدہ کیا تھا کہ فاصلہ ہمیں کمزور نہیں کرے گا۔ میرے لیے شروع کے 2 سال مشکل تھے۔ کئی بار میری جاب بھی ہاتھ سے گئی، کئی بار زبان اور کلچر کا فرق دل کو توڑ جاتا، مگر ہر بار میں نے خود کو سنبھالا۔ ثانیہ کے گھر کے حالات نے اسے آگے پڑھنے کی اجازت نہ دی تو اس نے اپنی پڑھائی مکمل نہ کی، حالانکہ میں اس کی ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار تھا، مگر وہ ہر بار مجھے انکار کرتی تھی۔ اس لیے وہ ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کرتی تھی، پھر شام کو ٹیوشنز دیتی۔ وہ اپنی بہنوں کو کامیاب دیکھنا چاہتی تھی،
उसकी एक बहन मेडिकल पढ़ना चाहती थी तो दूसरी इंजीनियरिंग। सानिया ने अपनी हर ख्वाहिश कुर्बान कर दी ताकि उन दोनों का मुस्तकबिल रोशन कर सकती। कनाडा में ही मुझे 3 साल बीत गए। हमारा राब्ता तो था मगर वक्त के साथ एक कमी महसूस होने लगी। मैं काम में इतना उलझ गया कि अक्सर रात को फ़ोन न कर पाता। कभी मैसेजेस रीड रह जाते, कभी कॉल्स मिस हो जाती। एक दिन सानिया ने मुझे क़यामत खेज़ खबर सुनाई कि उसकी माँ उसके लिए रिश्ता ढूंढ रही है, क्योंकि वो जल्द अज जल्द उसको ब्याहना चाहती थी ताकि उसके बाद भी दोनों बेटियों को अपने घर का कर देती। उस वक्त तो मैं खामोश हो गया। दिल चाहा कि सब कुछ छोड़ के वापस भाग के उसके पास चला जाऊं, मगर फिर हकीकत भी तो सामने खड़ी थी। मैं कामयाब होकर लौटना चाहता था ताकि सानिया को हर आसानी और हर सहूलत दे सकता, लेकिन वो रहान सी आवाज़ में मुझे कहती कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम वापस आ जाओ, क्योंकि अम्मा अब्बा इंतज़ार नहीं करेंगे। उस रात मुझे नींद न आई। मैं सोचता रहा कि कहीं मैं अपने ख्वाब के पीछे भागते भागते उसका दिल तो नहीं तोड़ रहा। मैं सानिया को टालना नहीं चाहता था मगर मेरी मजबूरी थी, और फिर चौथे साल मुझे अपनी मेहनत का फल मिलने लगा। एक बिजनेस कंपनी ने मेरा प्रोजेक्ट अपनाने का फैसला किया। ये मेरे करियर का सबसे बड़ा मौका था। खुशी से मेरी आंखें नम हो गईं। सबसे पहले मैंने सानिया को कॉल की, इसके बाद भाई भाभी को अपनी कामयाबी के बारे में बताया। तभी भाभी ने मुझसे मजाक में कहा कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उनको सानिया के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन कहते हैं ना कि ज़िंदगी हमेशा सीधी लकीर पे नहीं चलती। मैंने जब भाई भाभी को सानिया के बारे में बताया तो उनके तेवर ही बदल गए। भाभी कहने लगी, वो एक गरीब घर की लड़की है, हमारी फैमिली से कभी कबूल नहीं करेगी, तुम्हें उससे भी कहीं बेहतर रिश्ते मिल सकते हैं। मगर मेरा दिल दहल गया। ये वो लम्हा था जब मुझे 2 दुनियाओं के बीच खड़ा होना पड़ा। एक तरफ मेरा ख्वाब, दूसरी तरफ ख़ानदान की अना। सानिया मुझसे बार बार पूछती कि मैं कब अपने घर उसकी बात करूँगा, मगर मैंने उससे ये बात छुपाई कि मेरे घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया है। मगर उसके दिल ने शायद महसूस कर लिया था कि मैं उससे कुछ छुपा रहा था। तभी एक दिन उसने मुझसे पूछा, तुम्हारे भाई भाभी को मेरे बारे में मालूम है? उस वक्त एक बार फिर मैंने उसे हमेशा की तरह टाल दिया कि वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे भी एक डर सताने लगा कि अगर भाभी और भाई ना माने तो क्या होगा। जब मुझे यकीन हो गया कि अब मैं वापस पाकिस्तान जाके अपना बिजनेस कर सकता था तो मैंने कनाडा को खैर बात कहा और वापस रवाना हो गया। सानिया मुझे देख के खुश थी कि अब मैं जल्द ही अपने भाई भाभी को उसके घर भेज दूंगा, मगर मैंने जब तक भाई भाभी को मना न लेता सानिया को झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था। भाई और भाभी मेरी कामयाबी पे खुश थे। भाभी ने घर पहुंचते ही मुझे ना जाने किस किस लड़की के बारे में बताया कि अगर मैं हाँ कहता तो वो बात आगे चला सकती थी, मगर मैंने भाभी को साफ कह दिया कि अभी मुझे शादी नहीं करनी थी। लेकिन भाभी ने मेरे कान में एक सरगोशी की जिसको सुन के मेरा वजूद सुन हो गया, लेकिन मैंने फ़कत चेहरे पे एक मुस्कान सजा के उनको टाल दिया। जल्द ही मुझे एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई और मैं अपना एक आर्किटेक्चर ब्रांड बनाने में कामयाब हो गया। फिर मुझे फ़िक्र थी सानिया की, जो अभी तक मेरे इंतज़ार में थी। जब से मैं वापस आया था मेरा मामूल बन गया कि मैं और सानिया अक्सर इकट्ठे ही लंच करने लगे। डिनर के वक्त भी अगर मैं ऑफिस में होता तो वो मेरे पास ही चली आती और हम डिनर भी इकट्ठे करते। भाई और भाभी ने कभी मुझ पे कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, इसलिए मैं अपनी मर्जी से जब चाहता घर वापस आ सकता था। ना ही सानिया पर और उसके घर से कोई रोक टोक थी। लेकिन उसको एक ही बात की फिक्र थी, और वो ये कि उसकी माँ को उसकी शादी की जल्दी थी। 2 साल तक तो उसने अपनी माँ को किसी न किसी बहाने रोका हुआ था कि वो पहले अपनी छोटी बहनों का मुस्तकबिल महफूज बनाना चाहती थी, लेकिन आखिर कब तक उसकी माँ भी उसके बहकावे में आती। आखिर थी तो सानिया घर की बड़ी बेटी, फिर भला ये कैसे हो सकता था कि उसकी अम्मा इससे पहले उसकी दोनों बहनों के बारे में सोचती। इसलिए सानिया ने एक बार फिर मुझसे सराह शुरू कर दिया कि मैं कब अपने भाई भाभी को उसके घर भेजूंगा। वैसे भी जब सानिया मेरे साथ होती तो मुझे वक्त का एहसास ही ना होता, और अक्सर मैं घर लेट जाने लगा। शुरुआत में तो जब भाभी और भाई मुझसे लेट आने की वजह पूछते तो मैं उनको टाल देता कि अक्सर मीटिंग्स में देर सवेर तो हो ही जाती है। वैसे भी मेरा नया बिजनेस था, इसलिए टाइम तो देना पड़ता है। भाई और भाभी ने मेरे देर से घर आने को ज़्यादा नोटिस नहीं किया, क्योंकि भाई खुद भी जॉब करते थे और उनको अंदाज़ा था कि अक्सर देर तो हो ही जाती है। और इसके अलावा उनको मुझ पर भरोसा भी था। उनको यकीन था कि मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिसकी वजह से उनको शर्मिंदा होना पड़ता। मगर ये सबसे ज़्यादा छुप नहीं सकता था। मैं और सानिया अपना सारा वक्त ही एक दूसरे के साथ गुजारने लगे और घर देर से आना मेरी आदत हो गई। ऐसे में सानिया मुझे अपने घर भी ले गई
और मैं उसकी अम्मा से भी मिला। सानिया का घर तो बहुत छोटा था और वहाँ ज़रूरत की हर चीज़ नहीं थी, बल्कि वो बहुत मुश्किल से कुर्बानियाँ दे के ज़िंदगी गुजार रही थी। इसलिए मैं अक्सर उसे महंगे महंगे मॉल्स में शॉपिंग पे ले जाता और उसे महंगे महंगे तोहफे देता। पहले तो वो ना मानी, मगर जब मैंने उसे यकीन दिलाया कि अब तो वो मेरी बीवी बनने वाली थी, इसलिए उसको मेरे सब तोहफे लेने ही होंगे, तब उसने मेरी किसी बात से इनकार न किया। सानिया मुझे अक्सर कहती कि अब मुझे जल्दी अपने भाई भाभी को उसके घर भेज देना चाहिए था, क्योंकि वो भी तो अपने घर वालों को मेरे बारे में बता ही चुकी थी। मैं भी इस खुशफहमी में था कि सब कुछ आसानी से हो जाएगा, क्योंकि भाई ने कभी मुझे इनकार नहीं किया था, मगर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं घर देर से पहुंचा तो भाई दरवाजे पे ही खड़े मेरा इंतजार कर रहे थे। उनके चेहरे पे सख्ती और आंखों में बेचैनी थी। वो मेरे लिए परेशान हो रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि मैं अभी भी छोटा बच्चा ही था जिसके इंतजार में वो दरवाजे पे खड़े रहते थे। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, मगर भाभी को तो शायद पहले से ही मालूम था कि मैं किसी को पसंद करता था, मगर उन्होंने कभी मुझसे पूछा नहीं था। और उस दिन भाभी ने मुझसे पूछ ही लिया कि अगर मैं किसी को पसंद करता था तो उनको बता सकता था। भाई ने भी मुझे यकीन दिलाया कि वो मेरी पसंद जानना चाहते थे, क्योंकि अब उनसे भी मेरा रोज़ रोज़ देर से आना बर्दाश्त नहीं होता था। ऊपर से शहर के हालात भी वैसे थे। मैंने उनको टालने की बहुत कोशिश की, मगर भाई तो उस दिन जिद ही करने लगे कि मुझे सच सच बताओ, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है? पहले तो मैं खामोश रहा, मगर फिर मैंने उनको सानिया के बारे में सब कुछ बता दिया। सानिया का जिक्र सुनते ही भाई गुस्से से मुझे कहने लगे, तुम जानते भी हो कि आज तुम किस जगह पे हो? शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन तुम्हारे साथ रिश्तेदारी के लिए तैयार है, मगर तुम एक आम सी लड़की को अपने साथ ला के हमारा सर झुकाना चाहते हो। मैंने भाई को समझाने की कोशिश की कि मैं सानिया को पसंद करता हूँ, और उसकी अम्मा को भी यकीन दिला चुका हूँ कि मैं उसे हर कीमत पे अपनाऊंगा, मगर भाई के दिल में ना जाने कैसा डर बैठ गया था। भाई की बातें मेरे दिल पे बिजली बन के गिरी थी। मैंने सोचा था कि वो हमेशा से मेरी बात मानते आए थे, इसलिए इस बार भी मेरा साथ देंगे, मगर सानिया के घर और उसके स्टेटस के बारे में सुन के उनकी आंखों में गुस्सा और लहजे में हकारत ने मेरा हौसला तोड़ दिया। मैंने उन्हें बहुत समझाना चाहा कि सानिया एक बाहौसला लड़की है। उसने अपनी ज़िंदगी अपने घर वालों के लिए कुर्बान की थी, सिर्फ और सिर्फ इस उम्मीद पे कि एक दिन मैं उसका हाथ थाम लूँगा। लेकिन अगर मैं उसे अपना ना सका तो ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी होगी कि मेरी वजह से एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। मगर भाई के पास मेरी हर बात का जवाब होता था। वो कहने लगे कि तुम बड़े बिजनेसमैन हो, लोग तुम्हें रोल मॉडल समझते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम एक ऐसी लड़की को लाना चाहते हो जिसके पास ना दौलत है, ना ख़ानदान का असर और रसूख, बल्कि जिसका तुम्हारे साथ कोई फ्यूचर है ही नहीं। क्या तुम्हें मालूम है कि कल को लोग हंसेंगे? हम पे भाई की बातें सुन के मैंने भाभी की तरफ देखा। मुझे लगा था कि शायद इस बार भी मेरी खुशी की खातिर वो भाई को मना लेंगी, मगर वो मुझे ही समझाने लगी कि हमने तुम्हें इतनी दूर कनाडा अकेले इसलिए नहीं भेजा था कि वापस आके तुम सानिया जैसी लड़की का इंतखाब करो, बल्कि हमने तो तुम्हें खुद से दूर इसलिए भेजा था कि तुम अपना नाम भी बनाओ और हमारा सर भी फख्र से बुलंद कर दो। मगर तुम तो उस गरीब लड़की को मेरे मुकाबले में हमारी बेइज्जती करना चाह रहे हो, और ऐसा तो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे। मुझे कम से कम भाभी से सोच की उम्मीद तो ना थी। मैंने दिल में सोचा कि ये दुनिया कब बदलने वाली है, हमेशा दौलत ही क्यों मार बन जाता है। दूसरी तरफ सानिया भी दिन ब दिन बेचैन हो रही थी। कई बार वो मुझसे भीगी आंखों से कहती कि मेरी माँ अब मजीद इंतज़ार नहीं कर सकती। तुम तो जानते हो मैं जिस जगह रहती हूँ वहाँ के लोगों ने मेरे साथ तुम्हें आता जाता देखा है, इसलिए अब वही मोहल्ले वाले मेरे लिए तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। लोग कहते हैं तुम मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। मुझे तो किसी की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर मैं अपनी माँ को कैसे समझाऊं जो मुझे तो कुछ नहीं कहती, लेकिन वो दिन रात रोती हैं, जिसकी वजह मैं हूँ। मैं उसे समझाने की कोशिश करता रहा कि ज़रा और सब्र कर लो, मैं भाई को मना लूँगा, मगर एक दिन वो कहने लगी, कब तक, आखिर कब तक मैं अपनी माँ को कहूँ कि वो तुमसे उम्मीद लगाए रखें, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई की इकलौती जिम्मेदारी नहीं हूँ, बल्कि मेरे बाद दो और भी हैं। उस दिन तो उसकी आवाज़ में इतनी टूट फूट थी कि मैं देर तक खामोश बैठा रहा। मेरे अंदर जैसे आग जल रही थी, लेकिन सानिया कह भी तो ठीक रही थी। आखिर कब तक मैं उसको बहलाता रहता और उसके मोहल्ले के लोग उसको बातें सुनाते रहते। अभी मुझे सानिया की पिछली बातें नहीं भूली थी कि एक दिन उसने मुझे साफ अल्फाज में कह दिया कि मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। अगर तुम्हारे घर वाले मुझे कबूल नहीं कर सकते तो मैं ही पीछे हट जाती हूँ और तुम भी मुझे भूल जाओ। उसकी वो बात सुन के तो मैं चौंक गया। मैंने उसे सख्त लहजे में कहा कि ये फैसला तुम अकेली नहीं कर सकती। मैंने कसम खाई थी कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना के रहूँगा, चाहे मुझे सबके खिलाफ जाना पड़े। उस दिन मैंने भाई भाभी को साफ कह दिया कि अगर वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं घर छोड़ दूँगा। तभी भाभी कहने लगी, अगर वाकई तुम्हें सानिया इतनी ही अजीज़ है तो हम उसके घर चलते हैं, देखते हैं क्या वो हमारे म्यार पे पूरा उतरती भी है कि नहीं। मुझे लगा शायद यही मौका है, इसलिए फ़ौरन राज़ी हो गया।
मैं भाई भाभी को लेकर सानिया के घर चला गया, मगर भाई की नज़रें हर चीज़ पे तंज चल रहा था। जाते वक्त उन्होंने मुझे अकेले में तंज से कहा कि ये है वो लड़की जिसके लिए तुम सब कुछ दाव पे लगाना चाहते हो। सोच लो, ये तुम्हारे मयार के मुताबिक है भी, मगर मैं अपनी बात से पीछे ना हटा। सानिया के घर से वापस आने के बाद भाई और भाभी के चेहरों पे एक अजीब सा सकूत था, जैसे वो अभी भी कुछ फैसला कर रहे हों। रास्ते भर उन्होंने मुझसे कोई बात तक न की, बस एक दूसरे को इशारों में देखते रहे। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मुझे लग रहा था शायद वो राजी हो गए हैं, मगर अंदर ही अंदर एक खौफ भी था कि कहीं वो कोई ऐसी शर्त न रखते हैं जो मेरे लिए या सानिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। घर पहुंचते ही भाई ने मुझे कमरे में बुलाया और दरवाज़ा बंद करते हुए उन्होंने एक गहरी सांस ली और मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगे कि देखो, हमने तुम्हारी जिद मान ली। हमें अंदाज़ा है कि तुम वाकई सानिया से सच्चा प्यार करते हो, लेकिन एक बात याद रखना, हमारे ख़ानदान की इज्जत हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम सानिया से तुम्हारी शादी कर देंगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद और खुशी की खातिर, लेकिन इस शर्त पे कि वो अपनी माँ और बहनों से हर तरह का ताल्लुक़ ख़त्म कर दे। हमें अपने घर में कोई ऐसा रिश्तेदार या राब्ता नहीं चाहिए जो बार बार हमारी इज्जत पे हर्फ लाए। ये सुन के मेरी सांस अटक गई। मैंने बेयकीनी से भाई को देखा कि वो अच्छा नहीं कर रहे। भला सानिया अपने घर वालों से ला ताल्लुक़ कैसे हो सकती थी, ख़ास तौर पे जब वो ही उनका वाहिद सहारा थी। लेकिन मैंने पहले भी बताया ना कि मेरे भाई के पास तो हर बात का जवाब होता था। वो कहने लगे कि ये हमारे ख़ानदान का मयार है, अगर वो तुम्हारे साथ रहना चाहती है तो उसे अपना बैकग्राउंड सारा भूलना होगा। हम सब लोगों को ये नहीं बता सकते कि हमारे घर की बहू का ताल्लुक़ कैसे पुराने मोहल्ले से है। आखिर हमारी एक इज्जत है, एक स्टेटस है। मेरे होंठ खुश्क हो गए। मैं कुछ बोलना चाहता था मगर अल्फाज जैसे गुम हो गए। मैंने भाभी की तरफ भी देखा कि शायद वो ही कुछ नरम बात करें, मगर वो भी सर्द लहजे में कहने लगी कि हमने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है कि तुम्हारी पसंद को मान लिया। अब तुम भी समझदारी दिखाओ। अगर वाकई तुम्हें सानिया अजीज है तो उसे कायल करो, वरना फैसला तुम्हारे हाथ में है। उस दिन मैं रात भर जागता रहा। एक तरफ सानिया का मासूम चेहरा था, दूसरी तरफ उसकी बूढ़ी माँ और वो बहनें जिनके साथ वो बचपन से जुड़ी हुई थी। बार बार सानिया मुझे फ़ोन कर रही थी। वो जानना चाहती थी कि मेरे भाई और भाभी ने उसको देख के, उसके घर को देख के क्या फ़ैसला किया, मगर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं फ़ोन पे उसको वो सब कह सकता जो भाई और भाभी मुझे कह चुके थे। अगले दिन मैंने सानिया को सब बता दिया और वो ज़ख्मी आंखों से मुझे देखने लगी, मगर मैंने उसे समझाया कि वो फ़िक्र न करे, मैं सब संभाल लूँगा। मैं भाई को समझाऊँगा और उसे किसी को छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मगर वो तो भाई के शर्त पे सहम गई थी। मैंने पहली बार सानिया को इतना बेबस देखा था। वक्त गुजरता गया, घर में रोज नए मसाइल खड़े हो जाते। भाई कभी कहते कि सानिया को सिर्फ एक मुलाजिमा की तरह रखना होगा, भाभी कभी ताने देती कि हमने अपनी इज्जत दाव पे लगा दी है। मैं हर बार उनकी बातों को बर्दाश्त करता, मगर अंदर ही अंदर टूटने लगा। मैंने अपने फैसले का इख्तियार सानिया को दे दिया था और फिर बिलाखिर एक दिन उसने मुझे अपना फैसला सुनाया, जो सुन के मेरे औसान खता हो गए। वो कहने लगी कि मैंने सोच लिया है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और अपनी माँ और बहनों से ताल्लुक ख़त्म कर दूंगी। मैं दंग रह गया, मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैं जानता था कि वो फैसला सानिया को अंदर ही अंदर खा जाएगा। मैंने उसको बहुत समझाना चाहा कि वो थोड़ा सा सब्र कर ले, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूँगा, मगर वो भी अपनी बात पे डट गई, क्योंकि उसके लिए मुझे छोड़ना आसान नहीं था। मुझे कहने लगी कि मेरी माँ मुझे समझती है, वो कुछ दिन रोएगी और फिर खुद ही समझ जाएगी कि इसी में उसकी बेटी की भलाई है। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहता था, लेकिन जब सानिया मुझे अपना फैसला सुना ही चुकी तो भाई भाभी ने भी खुशी खुशी शादी की तारीख रख दी। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। भाई भाभी अब ज़ाहिरी तौर पर राजी दिखाई देते थे, मगर उनके दिल में अब भी गरूर और शक था। सानिया की माँ ने बेटे को आखिरी बार गले लगाया। उसकी बहनें ज़ारो कतार रोने लगीं। सानिया ने आंसू छुपाने की कोशिश की, मगर उसकी सिसकियों ने सब कुछ जाहिर कर दिया। शादी के दिन सब कुछ बज़ाहिर खुशी खुशी हुआ, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा बोझ था, जैसे मैं सानिया से उसकी सबसे कीमती चीज़ छीनने वाला था। शादी के बाद सानिया मेरे घर आ गई। शुरू के दिनों में भाई भाभी ने कुछ खास मसला नहीं बनाया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके रवैये बदलने लगे। शादी के बाद सानिया मेरे घर आ गई। शुरू के दिनों में भाई भाभी ने कुछ खास मसला नहीं बनाया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनके रवैये बदलने लगे। भाभी छोटी छोटी बातों पर तनकीद करती, भाई तंज करते कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन इस सब के बावजूद सानिया खामोश रहती। बस हर वक्त उसकी आंखों में नमी रहती। वो अपनी माँ की याद में टूट रही थी। कई बार मैंने उसे रात को चुपके चुपके रोते देखा। एक बार जब मैंने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने मुझसे अपने आंसू ऐसे छुपा लिए जैसे वो कोई जुर्म कर रही थी। सानिया के कदम मेरी जिंदगी में मुबारक साबित हुए और जल्द ही मैं अपने ब्रांड की 2 बड़ी फर्म्स खोलने में कामयाब हो गया। लेकिन भाई भाभी इस पे भी खुश होने के बजाय सानिया को भी कोसने लगे और कहने लगे कि अगर वो लड़की मेरी ज़िंदगी में ना होती तो मैं 2 के बजाय 4 फर्म्स का मालिक होता। अलबत्ता सानिया मेरी खुशी पे खुश थी, बहुत खुश थी। एक दिन मैं उसे टहलाने के बहाने ले गया और उसे उसकी माँ और बहनों से मिलवाया। वो हैरान रह गई थी और अपनी माँ से गले लग के फूट फूट के रोने लगी। मैं खामोश बैठा वो सब कुछ देख रहा था।
تبھی وہ حیرانگی سے اپنی ماں کے گھر کو دیکھنے لگی اور مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ کیا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کا گھر جس طرح چھوڑ کے آئی تھی وہ اب بالکل ویسا نہیں رہا تھا، بلکہ وہاں تو بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس کی ایک بہن کی شادی بھی ہو چکی تھی، لیکن وہ سب کس نے کیا تھا؟ وہ سب بھلا اور کون کر سکتا تھا؟ وہ سب میں نے ہی کیا تھا، کیونکہ میرے بھائی نے جو شرط رکھی تھی وہ تو ثانیہ کے لیے تھی، میرے لیے نہیں۔ اس لیے میں ثانیہ کی شادی کے بعد اس کی ماں اور بہنوں سے نہ صرف ملتا رہا بلکہ ہر طرح سے ان کی مدد بھی کرتا رہا۔ جب ثانیہ کی ماں نے اسے وہ سب کچھ بتایا تو وہ میرے گلے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کی ماں میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے ڈھیروں دعائیں دیتی رہی۔ میں نے ثانیہ کو شادی کے بعد پہلی بار دل سے مسکراتے اور خوش ہوتے دیکھا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس سب کے بارے میں بھائی اور بھابھی کو کیسے پتہ لگ گیا، لیکن انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے بعد سے تو ان کا رویہ معجزانہ طور پہ ثانیہ کے ساتھ اتنا اچھا ہو گیا کہ کئی بار مجھے خود شرمندگی ہوتی کہ میں نے اپنے بھائی کو بہت برا بنا دیا تھا۔ حالانکہ وہ اتنے برے تھے نہیں، لیکن وہ ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی اور اس کا نتیجہ اتنا بھیانک ہو سکتا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ایک دن بھابھی ثانیہ سے معافی مانگنے لگی کہ انہوں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی جو اس کو اپنے ہی گھر والوں سے دور کر دیا، اس لیے انہوں نے اس کو اجازت دے دی کہ وہ جب چاہے اپنی ماں اور بہنوں سے مل سکتی تھی، اس پہ کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ مجھے وہ سب دیکھ کے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی تھی، مگر حیرانگی سے زیادہ میں خوش بھی تھا کہ چلو بھابھی نے میری بیوی کو قبول کر ہی لیا، سب کچھ نارمل ہو گیا۔ ثانیہ کے چہرے پہ وہی مسکراہٹ واپس آ گئی جس کی مجھے خواہش تھی۔ میں اپنی بیوی کو بھی سمجھانے لگا کہ وہ خواہ مخواہ میرے بھائی بھابھی کو ہٹلر سمجھتی تھی، حالانکہ وہ اتنے برے بھی نہیں تھے۔ ثانیہ بھی میری بات پہ مسکرا دیتی۔ ہماری زندگی بالکل پرفیکٹ ہو گئی تھی، سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا۔ جب ثانیہ نے اپنی ماں سے ملنا شروع کیا تو مجھے اتنا وقت نہ ملتا کہ میں اس کی ماں کے گھر جا کے ان سے مل سکتا، بلکہ میں اسے وہاں ڈراپ کر کے خود آفس چلا جاتا اور واپسی پہ اسے اپنے ساتھ لے آتا۔ بھائی بھابھی خوش تھے اور میں بھی مطمئن، مگر پھر ثانیہ نے اپنی ماں کی طرف بہت زیادہ جانا شروع کر دیا۔ جب میں اس سے پوچھتا تو وہ کہتی کہ تم تو سارا دن آفس میں ہوتے ہو، بھائی بھابھی بھی گھر نہیں ہوتے، تو میں اکیلی گھر پہ رہ کے کیا کروں، اس لیے اپنی امی کی طرف ہی چلی جاتی ہوں۔ باہر تو مجھے ثانیہ کی یہ بات عام سی لگی کیونکہ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، لیکن ایک دن بھابھی نے مجھے بلایا۔ بھابھی کی بات میرے دل میں کسی تیر کی طرح چبھ گئی۔ پہلے پہل میں نے اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، سوچا کہ شاید وہ بلا وجہ بڑھا چڑھا کے بات کر رہی ہیں، لیکن بھابھی کا انداز ایسا تھا جیسے وہ ہر لفظ تول کے بول رہی تھی، جیسے انہیں پورا یقین تھا کہ میں ان کی بات پہ یقین کر لوں گا۔ وہ کہنے لگیں کہ میں تمہاری دشمن تو نہیں، لیکن تمہیں سمجھانا میرا فرض ہے، عورتیں بڑی چالاک ہوتی ہیں۔ آج تمہاری بیوی تمہارے کہنے پہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے، کل کو تمہارے ساتھ کھیل بھی کھیل سکتی ہے۔ تم نے نوٹ نہیں کیا، جب سے اسے اجازت ملی ہے وہ تمہارے آفس جانے کے بعد سیدھی اپنی ماں کے پاس نکل جاتی ہے۔ کبھی یہ سوچا کہ وہ وہاں کیا کرتی ہے، کس سے ملتی ہے؟ لیکن میں بھلا اپنی بیوی کے بارے میں ایسی باتیں کیسے سن سکتا تھا؟ اس لیے میں نے یہ کہہ کے بحث کو وہیں ختم کر دیا کہ وہ غلط سمجھ رہی ہیں، لیکن بھابھی کے الفاظ میرے دل میں کانٹے کی طرح اٹک گئے۔ اس دن کے بعد میں جب بھی آفس سے آتا اور ثانیہ اپنی ماں کے گھر سے لوٹتی تو جانے کیوں میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگتا۔ بھابھی کی باتیں خود بخود ہی میرے دماغ میں آ جاتی۔ باہر تو اس کے چہرے پہ سب کچھ نارمل ہوتا، لیکن پھر میں سوچتا کہ بھابھی نے آخر کوئی بات کی تھی تو انہوں نے کچھ دیکھا ہوگا، کچھ محسوس کیا ہوگا، تبھی مجھ سے کہا تھا۔ لیکن پھر بھی اپنے دل کو سمجھایا کہ یہ سب وہم ہے، لیکن شک ایک ایسا بیج ہے جو ایک بار دل میں بو دیا جائے تو وہ خاموشی سے جڑیں پکڑنے لگتا ہے۔ کچھ دن بعد بھابھی کہنے لگیں کہ کیا کل تمہاری بیوی کو آفس سے کوئی گھر چھوڑ کے گیا تھا؟ میں حیران ہوا کہ وہ بھلا کیوں آفس کے کسی لڑکے کے ساتھ آئے گی۔ میرے قدم لڑکھڑا گئے۔ میں نے گھبرا کے بھابھی سے پوچھا کہ کون سا لڑکا، لیکن بھابھی نے کندھے اچکائے اور کہنے لگی کہ میں کیسے جانوں، کوئی جاننے والا ہی ہوگا جس کے ساتھ وہ اپنی ماں کے گھر سے واپس آئی تھی، لیکن میں نے تو جو دیکھا وہ تمہیں بتا دیا، باقی تمہاری مرضی۔ اس رات میں نے ثانیہ سے کچھ نہ پوچھا، لیکن دل میں ہلچل مچی رہی۔ میں کروٹیں بدلتا رہا، وہ میرے پاس سکون سے سو رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے کانوں میں کوئی مسلسل سرگوشی کر رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے۔ کچھ دن بعد جب میں نے اسے ڈراپ کیا تو واپسی پہ جان بوجھ کے جلدی دفتر سے نکل آیا، سوچا کہ دیکھوں واقعی ثانیہ اپنی ماں کے گھر ہے یا نہیں۔ دل تیز دھڑک رہا تھا۔ جب میں اس کی ماں کے محلے میں داخل ہوا تو دیکھا وہ واقعی اپنے ماں کے گھر پہ تھی، لیکن جانے کیوں میرے دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ اپنی اماں کے گھر سے کس کے ساتھ واپس آئی تھی۔ وہ سٹ پٹا گئی۔ کون؟ کس لڑکے کی بات کر رہے ہو؟ میرے غصے نے مجھے اندھا کر دیا۔
मैंने सख्त लहजे में उससे कहा कि मैंने अपनी आंखों से ना सही मगर भाभी ने देखा है। तुम्हें समझ लेना चाहिए कि अब तुम किसी की बीवी हो, तुम्हारे हर कदम पे खानदान की इज्जत जुड़ी है। उसकी आंखों में आंसू आ गए लेकिन वो खामोश रही। उस दिन के बाद सानिया ज़्यादा खामोश रहने लगी। वो मुझसे कम बात करती और ज़्यादा वक्त अपनी माँ के घर गुजारने लगी और ये बात भाभी के लिए नया हथियार बन गई। वह हर दूसरे दिन मेरे कानों में तरह तरह की बातें डालने लगी कि देखो हमने कहा था ना, और जब रोज़ मेके जाए तो उसके दिल में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तुमने आंखें बंद करके इसे आज़ादी दी है। मैं बज़ाहिर तो ये जाहिर करता कि मुझे उनकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मगर अंदर ही अंदर मैं सुलगने लगा था क्योंकि सानिया ने मुझसे बात करना कम कर दिया। मैंने ये भी न सोचा कि वो नाराज़ है, बस ये समझ लिया कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है। एक दिन मैंने सानिया का फ़ोन चेक किया, उसे फ़ौरन महसूस कर दिया कि कुछ गड़बड़ है। जब उसने मुझसे पूछा तो मैंने भी रोबदार आवाज़ में कह दिया कि हाँ, और अगर देखा तो क्या, शौहर हूँ तुम्हारा, मेरा हक है। वो पहली रात थी जब हम एक दूसरे से रूठ के अलग कमरों में सोए। चंद दिन बाद भाभी ने फिर एक नया शोला भड़का दिया। कल मैंने तुम्हारी बीवी को फ़ोन पे बात करते सुना। वो कमरे में थी लेकिन आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि वो किसी मर्द से बात कर रही थी। बहुत कह कहे लगा रही थी। अब तुम ही बताओ ये हरकत एक शरीफ लड़की की हो सकती है? मेरा दिमाग घूम गया, खून खौलने लगा। मैंने उसी वक्त सानिया को बुला के पूछा कल किससे बात कर रही थी। वो हैरानी से कहने लगी कि मैंने तो बस अपनी बहन से बात की थी। मगर मैंने गुस्से से कहा कि झूठ मत बोलो, भाभी ने सब सुना है। वो तड़प के कहने लगी कि तुमसे झूठ मैं नहीं, तुम्हारी भाभी बोल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि तुम खुश रहो। सानिया की बात सुन के जैसे मेरी गैरत जाग गई। मैंने उठ के एक जोरदार थप्पड़ उसे रसीद किया और साफ कह दिया कि मुझे तुम जैसी बदकिरदार लड़की के साथ नहीं रहना। तुम मेरे घर से निकल जाओ और अपनी माँ के घर ही जाओ, जहाँ हर रोज ना जाने किस यार से मिलने जाती हो। उसकी आंखों में आंसू थे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, भाभी ने उसे बाजू से पकड़ के घर से निकाल दिया और कहने लगी कि जल्द ही तुम्हें तलाक के कागजात भी मिल जाएंगे। उसके जाने के बाद भी भाभी मुझे समझाने लगी कि सानिया जैसी लड़की के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद न करो जो सिर्फ तुम्हें धोखा दे रही थी। उस वक्त तो मैं कमरे में चला गया लेकिन मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा और अगले दिन मैंने भाभी से कहा कि मैंने सानिया के साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं उसको लेने जा रहा हूँ। लेकिन भाभी ने बहाने से मुझे अपने पास बिठाया और कोई 2 घंटे समझाने के बाद कहने लगी कि जाओ जाके ले आओ, लेकिन अगर मैं ठीक हुई तो बाद में पछताना मत। मेरे जहन में बहुत से ख्यालात आ रहे थे। जैसे ही मैं सानिया की माँ के घर दाखिल हुआ तो खाली घर देख के जैसे भाभी की बातें जहन में ताज़ा होने लगी कि वो अपनी माँ के घर न जाने किससे मिलने और क्या करने जाती है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि सामने मुझे एक अनजान लड़का आता दिखाई दिया जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे देखते ही वो घर से भाग गया। कुछ देर में एक दूसरे कमरे से सानिया बाहर आई तो उसके चेहरे पे परेशानी थी। इससे पहले कि वो मुझे कुछ कहती मैंने उसको एक और थप्पड़ मारा, उसको बदकिरदार कह के वहीं उसे तलाक दे के वापस आ गया। घर दाखिल होते ही भाभी मेरे पास आई और कहने लगी कि मुझे एक बहुत ज़रूरी बात तुमसे कहनी है कि सानिया की माँ तो इस घर में काफ़ी अरसे से रह रही थी जहाँ हर रोज़ तुम अपनी बीवी को छोड़ के आते थे। लेकिन इससे पहले कि भाभी मुझे कुछ और बताती मैंने उन्हें कह दिया कि मैं सानिया को हमेशा के लिए छोड़ आया हूँ, इसलिए अब वो दोबारा मेरे सामने उसका जिक्र मत करें। उस वक्त भाभी के चेहरे की खुशी में महसूस नहीं कर पाया, लेकिन चंद ही दिनों के बाद वो दोबारा मेरे सामने वही बात करने आ गई जो कभी उन्होंने सरगोशी में की थी। तुम तो जानते हो कि मेरी बहन एक नामवर फैशन डिज़ाइनर है, उसका रिश्ता आज भी तुम्हारे लिए है, बस तुम्हारी हाँ का इंतज़ार है। लेकिन मैंने भाभी से साफ कह दिया कि मुझे अब किसी से शादी ही नहीं करनी। मैं कभी सोच नहीं सकता था कि सानिया जैसी लड़की जिसको मैं अपने भाई और भाभी के मना करने के बावजूद भी अपनाया था वो मुझे इतना बड़ा धोखा दे सकती थी। भाभी मुझे कहती रही कि उस लड़की का कोई स्टेटस नहीं, उसकी कोई औकात नहीं कि वो मेरी बीवी बने, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। और जब मैंने उसे अपनी आंखों से गैर मर्द के साथ घर में तन्हा देखा तो उसी वक्त उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर किया। कुछ ही दिन गुजरे थे जब भाभी की वही बहन हमारे घर आई और कुछ दिन हमारे ही घर में रहने वाली थी, क्योंकि भाभी ने उसे मेरे लिए ही बुलवाया था। लेकिन मुझे अब किसी से फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं दोबारा किसी पे भरोसा करना ही नहीं चाहता था। जब एक रात मुझे भाभी के कमरे से चीख चीख के बातें करने की आवाज़ें सुनाई देने लगी तो मैं भाभी के कमरे में गया और वहाँ जो कुछ मैंने सुना उसके बाद मेरा दिल चाहा कि ज़मीन फट जाए और उसमें मैं समा जाऊँ। भाभी की बहन शायद नशे में थी। भाभी उसे बार बार कंट्रोल कर रही थी लेकिन वो हाथ नहीं आ रही थी, बल्कि एक ही बात कह रही थी कि आखिर सायम कब मेरा होगा। तब भाभी उसको कहने लगी कि मैंने बहुत मुश्किल से उस सानिया को उसकी ज़िंदगी से निकाला है। बहुत मुश्किल से मैंने एक लड़के को 2 लाख रुपए दे के इस बात पे राज़ी किया कि वो सानिया के खिलाफ जो कुछ कह सकता है कह दे, और वो तैयार भी है। मेरी खुशकिस्मती भी देखो कि सायम ने अपने सामने ही सानिया को उस लड़के के साथ उसकी माँ के घर देख लिया। मैं तो शुक्र करती हूँ कि उस दिन मैंने उसकी माँ और उसकी बहन को बहाने से घर से बाहर भेज दिया था ताकि सानिया उस लड़के के साथ तन्हाई में सायम की नज़रों में आ जाती और सायम को मेरी सब बातों पर यकीन आ जाता। और देखो मेरा प्लान कामयाब हो गया।
साइम उसको छोड़ चुका है, बस थोड़ा सा सब्र और कर लो, फिर वो तुम्हें अपना लेगा। मेरा सारा जिस्म सुन हो गया। मैं खुद को मलामत करने लगा कि क्यों मैंने जल्दबाजी में इतना बड़ा कदम उठाया। उसी वक्त मैं उल्टे कदमों सानिया के घर की तरफ भागा, मगर वहाँ बाहर एक बड़ा सा ताला मुझे मुंह चला रहा था। मैं वहाँ बैठा बहुत देर तक रोता रहा। जब घर वापस आया तो भाभी की बहन मिन्हा ज़्यादा नशे की वजह से कह पे कह कर रही थी और उसे इमरजेंसी में ले जाना पड़ा, मगर मुझे किसी की होश नहीं थी, न भाभी की परेशानी न मिन्हा की ज़िंदगी की। बस एक फिक्र थी कि मैंने सानिया के साथ इतना बड़ा जुर्म क्यों कर दिया। वो तो मेरे लिए अपनी माँ और अपनी बहनों को छोड़ने को भी तैयार थी, लेकिन मैंने अपने भाई और भाभी के साथ रहते हुए भी उसकी किसी बात का यकीन न किया और भाभी की बातों में आके बिना कुछ जाने या उससे कुछ पूछे उसको तलाक ही दे दी। आखिर मुझे पहले ये क्यों न समझ आया कि भाभी तो पहले ही नहीं चाहती थी कि मैं उससे शादी करूं। भाई भाभी मुझे बुलाते रह गए, मगर मुझे अब उन दोनों पे भी भरोसा नहीं, जिन पर मैंने सबसे ज़्यादा भरोसा किया। उन्होंने मुझसे मेरी ज़िंदगी, मेरी सानिया छीन ली। मिन्हा तो मर गई, भाभी ने भी मेरे साथ अपने गुनाहों का इकरार कर लिया कि वो जानबूझकर सानिया पे इल्ज़ाम लगाती रही, क्योंकि वो मिन्हा से मेरी शादी करवाना चाहती थी, जो एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर के साथ साथ ड्रग एडिक्ट भी थी। मैं आज सानिया को पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। शायद मेरे जैसे अमीर घरों के लड़के ही होते हैं जिनके लिए मशहूर है कि वो बेचारी लड़कियों को अपनी जाल में फंसा के उनको बर्बाद कर देते हैं। मैंने भी तो अपनी सानिया के साथ ऐसा ही किया, लेकिन मैं इस माशरे को कैसे यकीन दिलाऊं कि इस सब में सिर्फ लड़कों का हाथ नहीं होता, बल्कि हमारे घर वाले भी इसमें बराबर के शरीक होते हैं, जो किसी की माँ बहन बेटी की इज्जत तो नहीं कर सकते, लेकिन उनको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते।